आज हम लोग सप्लीमेंट्री लिस्ट 3 का डिस्कशन करेंगे। 67th बीपीएससी पीटी का सप्लीमेंट्री लिस्ट 3 डिस्कस करेंगे। आज का पहला जो 25 क्वेश्चन है उसका ओरिएंटेशन पृष्ठभूमि अलग है। सामान्यतः आज हम लोग पर्यावरण, सतत विकास, इंग्लिश में बोलते हैं सस्टेनेबिलिटी, पर्यावरण की संरक्षा, कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये सब टॉपिक पे बात करेंगे और साथ में देखेंगे कि कौन कौन सा सरकारी परियोजना पर्यावरण के, वन के संरक्षण के लिए है। तो ये सप्लीमेंट्री लिस्ट 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हम चाहते हैं कि आप बारीकी से हर एक क्वेश्चन का नोट्स बनाएं। एक कॉन्सेप्ट है जो कि आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। पहले इसको हम लोग इंग्लिश में समझेंगे, फिर हिंदी मीडियम में समझेंगे। चलिए पहले इंग्लिश मीडियम से शुरू करते हैं। एक शब्द आप पाएंगे जिसको कि हम लोग कहते हैं कंपा। कंपा का अर्थ होता है, फुल फॉर्म है कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। कंपा का फुल फॉर्म होता है कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। ये क्या है? कंपा एक एक्ट है, कंपा एक अधिनियम है, कंपा एक कानून है। देखते हैं कि किसी न किसी तरह वन क्षेत्र का क्षरण हो रहा है। वी आर वेरी nicely observing the fact that forest areas are being depleted because of urbanization, because of construction work. So the government has come up with the act known as Kampa Act, that if you are going to deplete or exploit the forest resources, then you have to compensate with that equal amount of land elsewhere. It's a kind of compensation that whatever forest we have, at least it should remain. And if you are anyway trying to deplete it or make loss of it, then this act comes into picture, whereby it says that no, if you are using 5 hectares of land, then you have to get another 5 hectares of land complete with forest and all its vegetation. This is what the Kampa Act says. So in 2006, this Kampa Act was established for the management of compensatory afforestation fund. Means for if there is any amount of afforestation, means deforestation, then you have to compensate it, and that is what is meant by compensatory afforestation, and there is a fund for it, and the fund is known as compensatory afforestation fund. See, as per the Kampa Act, there are 2 types of fund. One is National Compensatory Afforestation Fund, and this fund is created for an all India level. Means if the government of India decides for an alternative forest area, and the fund for it will come from National Compensatory Afforestation Fund, and the money for it will come from public accounts of India. Similarly, on the state level, you have a state compensatory afforestation fund
and the money will come from public accounts of each state. So where the money will come to these funds? Another question arises, what is the source of funding for these funds? National Compensatory Afforestation Fund or Compensatory Afforestation Fund for each state. So the funds will come from compensatory afforestation. What do we mean by compensatory afforestation? It means that suppose a person X uses some area of the forest, then that person X will have to pay equal amount in terms of the value of that forest to the government. If it goes to the state government, then it will be public accounts of that state, or if it goes to the central government, it will be known as public account of India fund. So this is one thing. Second, net present value of forest. What is the value of forest today? And the fund will also come for any project that is being undertaken there. So National Fund will receive 10% from these funds and the state fund will receive remaining 90%. What does CAMPA Act says? CAMPA Act says that suppose a company is diverting forest land, then that company must take up alternative land for the forest. And for afforestation, the company have to plant new trees in the alternative land provided to the state. अब हम लोग हिंदी में समझते हैं कंपा एक्ट क्या है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य यह है कि यदि वन क्षेत्र में किसी तरह की कमी हुई तो उस क्षति के कारण जो राशि प्राप्त होगा सरकार को, उस राशि से फिर से वनीकरण में निवेश किया जाएगा। और इसके लिए केंद्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष बना है, जिसको हम लोग नेशनल कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड कहते हैं, राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष। और राज्यों के लिए राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष बना, जो कि लोक लेखा पब्लिक अकाउंट्स के अधीन रहेगा। कैसे इसमें पैसा आएगा? तो जो भी क्षतिपूर्ण जो भी वनीकरण में क्षति हुआ है उसके हिसाब से पैसा लगेगा, फिर वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य पे लगेगा, और भी कोई अन्य परियोजना है तो इस 3 स्रोत से उसमें पैसा आएगा। और जो पैसा आएगा उसमें से 10% जाएगा राष्ट्रीय कोष में और 90% जाएगा राज्य के कोषों में। और इस अधिनियम के अनुसार यदि कोई भी कंपनी किसी जंगल के भूमि को उपयोग में लाती है या लाना चाहती है तो उस कंपनी को उतनी ही बड़ी भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण करना होगा। यही कंपा एक्ट का जो है उद्देश्य है। अब उस कंपनी को वैकल्पिक भूमि पे पेड़ भी लगाना पड़ेगा, पेड़ का खर्च भी वहन करना पड़ेगा। तो कंपा एक्ट के तहत ये सब आता है। तो चलिए अब हम लोग इस कॉन्सेप्ट के आधार पे क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपा? कंपा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इट वॉज स्टैब्लिश्ड इन 2006 फॉर द मैनेजमेंट ऑफ कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड।
यह एक कोष है जिसकी स्थापना 2006 में क्षतिपूरक वनीकरण के प्रबंधन के लिए की गई थी। ये सही है। नंबर 2, द वर्ड कंपा स्टैंड्स फॉर कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इंग्लिश में सही है। हिंदी में देखते हैं। कंपा का पूरा नाम है क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण। ये भी सही है। 3, इट वॉज स्टैब्लिश्ड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट डिसीजन इन 2002 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी की थी कि वनीकरण के लिए राज्य को दिए गए कोष का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है। इसलिए उसने आदेश किया कि इन कोषों को केंद्रीय स्तर पर समेकित करके एक क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाया जाए। ये सही है। ये कंपा एक्ट देख रहे हैं, इसके तहत जो कोष बनता है वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद ये बना था। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। ऑल द ऑप्शंस सभी विकल्प। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये सरकारी योजना परियोजना के तहत ये आता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं इंग्लिश में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपैक्ट टू कॉम्पनसेट द लॉस ऑफ फॉरेस्ट एरिया एंड टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केम अप विद द वेल डिफाइंड एक्ट नोन एज कंपा। ये सही है। द लॉ एस्टैब्लिशेस द नेशनल कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। ये भी सही है, अभी हम लोग डिस्कस किए हैं। द लॉ एस्टैब्लिशेस द स्टेट कॉम्पनसेटरी अफॉरेस्टेशन फंड अंडर द पब्लिक अकाउंट ऑफ ईच स्टेट। ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। अब हम लोग हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन कैंपा अधिनियम के लिए सही है? इस अधिनियम का मुख्य ध्येय वन क्षेत्रों में होने वाली कमी के बदले प्राप्त राशि का संधारण और उसका वनीकरण में फिर से निवेश करना है। ये सही है। बी ऑप्शन, अधिनियम के अंतर्गत केंद्रीय स्तर पे एक राष्ट्रीय क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाया जाएगा। ये सही है। अधिनियम के अंतर्गत राज्यों में राज्य क्षतिपूरक वनीकरण कोष बनाए जाएंगे। ये भी सही है। और ये भी सही है कि ये सब जो कोष है लोक लेखा के अधीन रहेगा, पब्लिक अकाउंट्स के तहत रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का डी सही ऑप्शन है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ द फंड्स? फंड को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्वेश्चन का मतलब यही है कि हाउ विल द फंड्स, कितना फंड आएगा, कितना अमाउंट आएगा, उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो एक है बेसिस कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन का, ये सही है। दूसरा है नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फॉरेस्ट निकाला जाएगा। और तीसरा कोई और प्रोजेक्ट चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का भी सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शंस। निधि का स्रोत क्या होगा? क्षतिपूर्ति वनीकरण, ये सही है। वन का शुद्ध वर्तमान मूल्य, ये भी सही है। और अन्य परियोजनावार भुगतान, ये तीनों सही है। तो ए, बी और सी सही ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द शेयर ऑफ द नेशनल फंड? राष्ट्रीय कोष का हिस्सा क्या है रहेगा? वो रहेगा आपका 10%। वो रहेगा 10%। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है ए, 10%। हम लोग डिस्कस किए। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द शेयर ऑफ द स्टेट फंड? कंपा एक्ट के तहत जो राज्य का कोष बनेगा, राज्य निधि बनेगा, उसमें राज्य का कितना हिस्सा रहेगा? तो राज्य का हिस्सा रहेगा 90%, 90%। 5 का है डी। क्वेश्चन नंबर 6 चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर कंपा एक्ट?
According to the Act's provision, a company diverting forest land must provide alternative land to take up compensatory afforestation. कहने का मतलब है यदि कोई कंपनी कोई वन के क्षेत्र को, जंगल के क्षेत्र को फॉरेस्ट लैंड इस्तेमाल करती है तो कंपनी को एक वैकल्पिक लैंड पे, अल्टरनेटिव लैंड पे फॉरेस्टेशन करना पड़ेगा, वनीकरण करना पड़ेगा, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अफॉरेस्टेशन और हिंदी में कहते हैं क्षतिपूरक वनीकरण. याद रखिएगा, क्षतिपूरक वनीकरण हिंदी में बोलते हैं, अफॉरेस्टेशन हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं. तो अधिनियम के प्रावधान अनुसार जो कंपनी किसी जंगल के भूमि का उपयोग में लाना चाहती है तो उसे इसके बदले किसी उतनी ही बड़ी भूमि पर क्षतिपूरक वनीकरण का काम करना पड़ेगा. सही है. ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं. फॉर अफॉरेस्टेशन द कंपनी शुड पे टू प्लांट न्यू ट्रीज इन द अल्टरनेटिव लैंड प्रोवाइडेड टू द स्टेट. जो स्टेट गवर्नमेंट आपको देगी अल्टरनेटिव लैंड की वैकल्पिक जमीन पे आप वनीकरण करें और जमीन का पैसा भी कंपनी ही देगी, तो उस पर जो नए नए पेड़ पौधे लगाना है, वनस्पति लगाना है, वो भी कंपनी ही देगी. तो जंगल लेने वाले कंपनी सरकार द्वारा दी गई वैकल्पिक भूमि पर नए पेड़ लगाने का खर्च वहन करेगी. ये सही है. तो सही ऑप्शन है ए. बोथ 1 and 2 आर करेक्ट. दोनों 1 और 2 सही है. राइट स्टूडेंट्स, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं. अब देखिए फॉरेस्ट, हम लोग इसमें देखेंगे फॉरेस्ट का डेफिनेशन, वन की परिभाषा बहुत ही अजीब गरीब है. बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हम लोग को अब प्रॉब्लम होता है. कल होकर आप IAS ऑफिसर बनेंगे और आपको वन क्षेत्र आपके अधीन होगा तो आपको सबसे पहला प्रॉब्लम हुआ कि फॉरेस्ट एरिया को डिफाइन कैसे करें. उसी पे है ये क्वेश्चन नंबर 7. पहला तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन देखते हैं या प्रशासनिक परिभाषा देखते हैं कि कुछ लैंड को फॉरेस्ट लैंड डिफाइन कर दिया गया है ना, जंगल के रूप में परिभाषित कर दिया गया, लेकिन उस भले उसमें कोई पेड़ उगे ही ना. तो एडमिनिस्ट्रेटिव डेफिनेशन में आपको ऐसा आपको मिल सकता है जमीन जहाँ पे नाम तो फॉरेस्ट, सरकार के रिकॉर्ड में फॉरेस्ट है लेकिन वहाँ कोई पेड़ है नहीं. एक कॉन्सेप्ट है लैंड यूज डेफिनेशन, भूमि उपयोग. भूमि उपयोग का मतलब क्या होता है, लैंड यूज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि किसी भूमि पे क्या काम किया जा रहा है. क्या स्कूल कॉलेज है, क्या कृषि है, या वन है ना, या बिल्डिंग है. तो जो प्राथमिक उद्देश्य जिस भूमि पे किया जा रहा है तो उस प्राथमिक उद्देश्य के कारण उस भूमि को परिभाषित किया जाता है. इसको कहते हैं इंग्लिश में लैंड यूज डेफिनेशन या भूमि उपयोग परिभाषा. तीसरा कॉन्सेप्ट है लैंड कवर डेफिनेशन, हिंदी में बोलते हैं भूमि आवरण परिभाषा. कहने का मतलब कि 2 चीज, वनस्पति का कौन सा वनस्पति का प्रकार और वनस्पति का घनत्व. वनस्पति का प्रकार और घनत्व के आधार पर अब वनों को परिभाषित करते हैं. You define forest based upon the type and density of vegetation. तो 1 का है C, 2 का है B और 3 का है A. क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है A. क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है A. क्वेश्चन नंबर 8. Which judgment of the Supreme Court expanded the definition of forest? जैसा कि हम लोग बात किए थे कि जंगल का, वन का जो परिभाषा है बड़ा क्लियर नहीं है. तो सुप्रीम कोर्ट के किस फैसले से वन की परिभाषा का विस्तार हुआ, तो वो उस फैसले को हम लोग बोलते हैं गोदावर्मन केस. गोदावर्मन केस ये हुआ था 1996 में. ये 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था. और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है फॉरेस्ट के जो डेफिनेशन है, वन का जो परिभाषा है उसको जो है विस्तार पूर्वक और परिभाषित की थी. ऐसे सुप्रीम कोर्ट बाकी गवर्नमेंट से सबसे इसका सजेशन मांगी और सजेशन के आधार पे फिर परिभाषा को एक्सपैंड किया गया.
तो गोदावरमन सुप्रीम कोर्ट का केस था 1996 में, याद रखिएगा, से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गोदावरमन केस में ही सुप्रीम कोर्ट जो है फॉरेस्ट के डेफिनेशन को विस्तार पूर्वक जो है देखी और फिर बताए कि इस यदि कोई शब्द फॉरेस्ट है, जंगल है, तो किस तरह का भूमि इसमें आ सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए। गोदावरमन के केस के आधार पे हम लोग यदि वन को परिभाषित करते हैं, फॉरेस्ट को यदि डिफाइन करते हैं, तो वो कुछ इस तरह का होता है कि कोई भी भूमि जिसका क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, जिसका लैंड एरिया 0.5 हेक्टेयर से ज़्यादा है, और उसमें पेड़ की जो छाया होती है, ट्री कैनोपी, वो 10% से भी ज़्यादा हो, भूमि का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर से ज़्यादा, पेड़ और पेड़ की छाया 10% भूमि तक या उससे ज़्यादा, और जहाँ पे कृषि कार्य ना हो रहा हो, जहाँ पे एग्रीकल्चर वर्क ना हो रहा हो, उसी को हम लोग जंगल कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में गोदावरमन केस में सुप्रीम कोर्ट जो है एक जंगल को परिभाषित की, एरिया क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर, ट्री कैनोपी 10% और एग्रीकल्चर या कोई और काम वहां पे नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया? भारत की ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया क्या है? इसको जरा देखिए। ये देखिए, ये है पोरबंदर और ये है आपका दिल्ली से पहले आपका पानीपत। पोरबंदर से लेके पानीपत, पोरबंदर गुजरात और पानीपत आपका हरियाणा, नहीं पोरबंदर से लेके पानीपत तक पूरे अरावली श्रृंखला पे है ना, यहाँ पे वनीकरण, फॉरेस्टेशन, वेजिटेशन लगाया जाएगा, एक ग्रीन कवर बनाया जाएगा। 1400 किलोमीटर यहाँ पे वनस्पति लगेगा। ऐसी को कहते हैं ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया, इसी को कहते हैं हम लोग ग्रीन वॉल या ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इस मैप पे आइए, देखिए यही है आपका पोरबंदर, ये यहाँ से गुजरात पोरबंदर और पानीपत, और यहाँ से लेके यहाँ तक आपका ग्रीन वेजिटेशन, हरित वनस्पति लगाने की प्लानिंग है, जिसको कि हम लोग ग्रीन वॉल कहते हैं। अब देखिए, ये जो क्षेत्र है ये आपका थार क्षेत्र है और ये आपका पाकिस्तान है, ये क्षेत्र है पाकिस्तान। अब ये इसका इम्पोर्टेंस अपना है, उसको जरा हम लोग डिस्कस करते हैं कि ग्रीन वॉल में इसका क्या इम्पोर्टेंस है। ये जो आपका थार क्षेत्र है, यहाँ से रेगिस्तान है तो यहाँ से काफ़ी धूल आता है, तो ये ग्रीन वॉल बनने से ये धूल आना रुक जाएगा, नंबर 1। दूसरा, थार रेगिस्तान के कारण ये जो रेगिस्तान बनने की प्रक्रिया है आगे आगे बढ़ रही है ना, द प्रोसेस ऑफ डेजर्टिफिकेशन इज गोइंग ऑन। तो कम से कम ये डेजर्टिफिकेशन या रेगिस्तान मरुस्थलीय भूमि बनने की प्रक्रिया ये रुक जाएगी। तो ग्रीन वॉल बनने से बहुत फायदा है, और इसी पे हम लोग जरा क्वेश्चन नंबर 9 डिस्कस करते हैं। व्हाट इज ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया? ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया इज फॉरेस्टेशन फ्रॉम पोरबंदर टू पानीपत। 9 का है सी। भारत की ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया क्या है? तो ये हरित पट्टी पोरबंदर से पानी तक बनाई जाएगी, जो अरावली पर्वत में वनीकरण के माध्यम से निम्नलिखित भूमि के पुनर्निर्माण में सहायक होगी। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है सी। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया? भारत की ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? टू कंट्रोल द राइजिंग
रेट्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, यस सही है। टू कंट्रोल द ईस्टवर्ड एक्सपेंशन ऑफ द थार डेजर्ट, ये भी सही है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए और बी। भारत की ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया का उद्देश्य क्या है? तो भूमि ह्रास की बढ़ती दरों को नियंत्रित करने के लिए, ये सही है। थार रेगिस्तान के पूर्वी विस्तार को नियंत्रित करने के लिए, ये भी सही है। तो 10 का सही ऑप्शन है ए और बी। अब जो है क्वेश्चन नंबर, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। हाउ विल द ग्रीन बेल्ट हेल्प? ग्रीन बेल्ट कैसे मदद करेगा? इट विल हेल्प इन रिस्टोरिंग डिग्रेडेड लैंड। जो मरुस्थलीय भूमि हो चुकी है उसमें वनस्पति लगाएंगे तो मरुस्थल का जो प्रक्रिया है वो कम हो जाएगा, फॉरेस्ट आपका डेजर्टिफिकेशन का प्रोसेस है कम हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। इट विल एक्ट एज बैरियर फॉर डस्ट कमिंग फ्रॉम द डेजर्ट्स इन वेस्टर्न इंडिया एंड पाकिस्तान, ये भी सही है, क्योंकि जो आपका वेस्टर्न इंडिया से, पाकिस्तान से, थार डेजर्ट से जो धूल आता है, डस्ट आता है, उसको ये ग्रीन बेल्ट रोक देगी। तो 11 का ए और बी। ग्रीन बेल्ट कैसे मदद करेगा? ये अरावली पर्वत में वनीकरण के माध्यम से निम्नलिखित भूमि के पुनर्निर्माण में सहायक होगी, सही है। ये पश्चिमी भारत और पाकिस्तान के रेगिस्तान से आने वाली धूल के लिए एक अवरोधक के रूप में भी कार्य करेगी, ये भी सही है। तो 11 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 12, जो इंडिया का जो ग्रीन बेल्ट है उसको प्रेरणा कहां से मिली? क्वेश्चन नंबर 12 वही है। इंडियाज ग्रीन बेल्ट इज इंस्पायर्ड बाय विच प्रोजेक्ट? भारत की जो ग्रीन बेल्ट है किस परियोजना से प्रेरित है? तो वो है आपका ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, है ना। अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल परियोजना, अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल वाली परियोजना से ही भारत का ग्रीन बेल्ट इन्फ्लुएंस्ड है, प्रभावित है, प्रेरित है। 12 का है सही ऑप्शन सी। 12 का है सही ऑप्शन सी। जरा हम लोग ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका को जरा समझ लें। ये देखिए, ये है आपका सेनेगल, ये अफ्रीका है, ये मैप देख रहे हैं अफ्रीका है। ये है जिबूती। तो सेनेगल से लेके जिबूती तक जो है आपका वनस्पति लगाया जा रहा है और इसी को कहते हैं हम लोग द ग्रेट ग्रीन वॉल। और भारत का ग्रीन वॉल जो है इसी से प्रेरित है, ठीक है। तो 2007 में ये प्लान आया था कि सेनेगल से लेके जिबूती तक जो है वनस्पति लगाया जाए, जिससे कि जीवन स्तर में भी सुधार होगा और पृथ्वी पे सबसे बड़ी जीवित संरचना होगी। जब आपका अफ्रीका का ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बन जाएगा तो अफ्रीका का भी निम्नीकृत भूमि यानी रेगिस्तान वाला भूमि का पुनर्निर्माण होगा, है ना, फॉरेस्टेशन होगा, वहाँ पे वनस्पति रहेगी और पृथ्वी पे सबसे बड़ी जीवित संरचना के रूप में ग्रेट ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट रहेगा। तो 12 का सही ऑप्शन है ग्रेट ग्रीन वॉल ऑफ अफ्रीका, जिससे भारत का ग्रीन वॉल प्रेरित है। चलिए बच्चों, एक कॉन्सेप्ट है रेडियो कॉलरिंग। ये देखिए, ये जानवर के गले में इस तरह का एक बेल्ट लगा दिया जाता है और इसी को कहते हैं हम लोग रेडियो कॉलरिंग। इसमें ट्रांसमीटर होता है और इससे सिग्नल छोड़ते हैं ये लोग, है ना। इससे सिग्नल आता है ताकि वन विभाग के लोग को मालूम चले कि जानवर कहाँ कहाँ जा रहा है। यदि गर्मियों का दिन है, पानी सूख गया है तो किस तरफ ये लोग जाते हैं। यदि कोई बीमारी फैल गया है तो कहाँ पे कितने जानवर हैं जहाँ पे बीमारी का संक्रमण होने का डर है। तो ये सब फायदा होता है रेडियो कॉलरिंग से। इंडिया में भी रेडियो कॉलरिंग का कॉन्सेप्ट आया हुआ है और उसी पे क्वेश्चन नंबर 13 है। इन विच एनिमल
रेडियो कॉलरिंग इज बीइंग डन इन इंडिया? भारत में किस जानवर में रेडियो कॉलरिंग की जा रही है? तो गुजरात फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, गुजरात वन विभाग, ये रेडियो कॉलरिंग का कॉन्सेप्ट इंडिया में लेके आई है। किस में किया जा रहा है? तो किया जा रहा है एशियाटिक लायंस में, ये किया जा रहा है एशियाई शेरों में। तो 13 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 14, वेयर इन इंडिया डू वी फाइंड एशियाटिक लायंस? भारत में हमें एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? तो सिर्फ आपके गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, हम लोग को गिर राष्ट्रीय उद्यान और वन जीव अभयारण्य में ही एशियाटिक लायन या एशियाटिक शेर मिलते हैं। तो 14 का है सही ऑप्शन सी, 14 का सही ऑप्शन है सी। अब देखिए, एशियाटिक जो शेर है इसमें एक बीमारी हो रही है, इसी पे हम लोग को फिलहाल चर्चा करना है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 15 ये भी देखिए कि भारत में सिर्फ आपको गिर नेशनल पार्क में मिलता है, लेकिन एशिया में देखा जाए या विश्व के आधार पे देखा जाए तो कहाँ कहाँ हम लोग को एशियाटिक लायंस मिला है? तो अफ्रीका में मिला है, यस। टर्की में मिला है, यस। इंडिया में मिला है, यस। हमें एशियाई शेर कहाँ मिलते हैं? अफ्रीका में मिलते हैं, यस। तुर्की मिलते हैं, यस। और भारत में मिलते हैं, हम लोग देख चुके। तो 15 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। अब जो है भारत में शेर के लिए कौन कौन सा खतरा है? व्हाट आर द थ्रेट्स इन इंडिया फॉर लायन? पोचिंग, इंक्रोचमेंट, अवैध शिकार बहुत बड़ा खतरा है, और अतिक्रमण, शहरों का जो अतिक्रमण हो रहा है, आबादी का अतिक्रमण हो रहा है, इंक्रोचमेंट हो रहा है जंगल में, ये सबसे बड़ा थ्रेट है टाइगर के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 ये सही है। फॉरेस्ट फायर, नेचुरल कैलेमिटीज, जंगल में आग, प्राकृतिक आपदा, ये सब सारा जो है शेरों के लिए खतरा है। नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, मतलब लकड़ी का जो कटाई हो रहा है ये भी जो है शेरों के लिए एक खतरा है, टाइगर्स इंडिया के लिए बहुत बड़ा थ्रेट है। और सबसे महत्वपूर्ण है एक बीमारी जिसको भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, वो है कैनिन या कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस, CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस या CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। ये सबसे बड़ा वायरस अभी इस शेरों के लिए हम लोग को देखने को मिला है। एनीवे, क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन है डी, ऑल द ऑप्शन, सभी विकल्प। तो चलिए जरा आगे हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 17 पे CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस पे हम लोग चर्चा करते हैं। हु इज द कैरियर ऑफ CDV, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का वाहक कौन है? तो जनरली ये डॉग्स होते हैं, जनरली ये कुत्ता होता है। तो 17 का सही ऑप्शन है सी। अब देखिए, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस होने से आंख देख रहे हैं इस तरह से निकल आता है, मुंह से लार निकलते रहता है। ये सबसे बड़ा जो है CDV का, कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का सबसे बड़ा लक्षण है। और उसी पे क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑर्गन्स ऑफ द डॉग आर अफेक्टेड बाय CDV? कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस से कुत्ते के कौन से अंग प्रभावित होते हैं? तो रेस्पिरेटरी, श्वसन प्रभावित होते हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, है ना, गैस्ट्रो इंटेस्टाइन मतलब आपके पाचन तंत्र भी प्रभावित होता है। रेस्पिरेटरी एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कुत्ते को बैलेंस जो है बिगड़ जाता है, नर्वस सिस्टम भी इफेक्ट हो जाता है। और कंजक्टिवाइवल मेम्ब्रेन्स ऑफ द आई, है ना, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है आंख में, है ना, उसी को कहते हैं कंजक्टाइवल मेम्ब्रेन्स ऑफ द आई गेट्स इफेक्टेड, आंखों में गंभीर संक्रमण हो जाना। तो सही ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 18 का भी ऑप्शन डी सही ऑप्शन है, यानी सभी विकल्प आपका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 19, इन विच एरिया इज द थ्रेट ऑफ सीडीबी हाईएस्ट? किस क्षेत्र में सीडीबी कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस का खतरा सबसे ज़्यादा है? तो वो है आपका गिर नेशनल पार्क में, वो है आपका जो है गिर नेशनल पार्क में, ऑप्शन नंबर सी। 20, व्हेन इज हर्बीवोरस सेंसस इन गुजरात गिर फॉरेस्ट कंडक्टेड? गुजरात के गिर वन में शाकाहारी जनगणना कब आयोजित की जाती है? शाकाहारी मतलब वो जानवर जो शाकाहारी हों, उसी को हम लोग हर्बीवोरस सेंसस कहते हैं या शाकाहारी जनगणना कहते हैं। तो गुजरात का जो गिर जंगल है, गिर फॉरेस्ट है, वहाँ पे हर्बीवोरस सेंसस शाकाहारी जानवरों का जनगणना कब होता है? तो वो होता है समर्स में, वो होता है ग्रीष्मकालीन में। 20 का है सही ऑप्शन ए। अब सवाल उठता है कि जो है ये गर्मियों के दिन में ही क्यों होता है? गर्मियों के दिन में क्या होता है कि पानी सूख जाता है ना, पानी की मात्रा कम हो जाती है। तो और दूसरा चीज़ है कि घास ओस भी बहुत कम जगह मिलता है, खाने का जो भी उनका पदार्थ होता है गर्मियों में कम पानी की मात्रा से, बिकॉज ऑफ लेस वाटर, जो फोलिएज होता है, जो फूड प्रोडक्ट होता है, कम हो जाता है। तो जैसे कि पानी है उसी तरह पानी कहीं कहीं मिलता है। तो जहाँ पानी मिलता है जितने भी जानवर हैं उस पानी वाले जगह पे एकत्रित हो जाते हैं, और एक जगह जब ये एकत्रित हो तो उसको गणना करना, गिनती करना आसान होता है। इसलिए समर्स में गुजरात के गिर फॉरेस्ट में, गिर के जंगल में आप देखेंगे समर्स में ही जनगणना पॉपुलेशन सेंसस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इज हर्बीवोरस सेंसस इन गुजरात गिर फॉरेस्ट कंडक्टेड इन समर? कहने क्वेश्चन का मतलब होना चाहिए वाई इज, ये आपका होना चाहिए सही, ये होना चाहिए वाई। वाई 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 इज, है ना, वाई इज हर्बीवोरस सेंसस, इन नॉट व्हेन होना चाहिए, होना चाहिए आपका वाई। वाई इज हर्बीवोरस सेंसस इन गुजरात गिर फॉरेस्ट कंडक्टेड इन समर बिकॉज फोलिएज इज रिड्यूस टू अ मिनिमम। जो खाने का जो पत्ते होते हैं वो कम हो जाते हैं और कहीं कहीं मिलते हैं। एंड सारे जानवर जो हैं वाइल्ड एनिमल्स कॉन्सेंट्रेट अराउंड वाटर पॉइंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 21, वाई इज हर्बीवोरस सेंसस इन गुजरात गिर फॉरेस्ट कंडक्टेड इन समर? ऑप्शन इज ए एंड बी। ग्रीष्म काल में गुजरात के गिर वन में हर्बीवोरस जनगणना क्यों की जाती है? पत्ते कम से कम हो जाते हैं और जंगली जानवर पानी के आसपास ध्यान केंद्रित करते हैं और गिनना यहाँ पे आसान हो जाता है। तो 21 का सही ऑप्शन है ए और बी। 21 का सही ऑप्शन है ए और बी। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स आर सर्वेड इन गिर सेंसस? गिर जनगणना में निम्न में से किस जानवर का सर्वेक्षण किया जाता है? तो स्पॉटेड डियर या चित्तदार हिरन, ब्लू बुल्स, नीला बैल या नीलगाय, सांबर, फिर आपका भारतीय गजेलस जिसको चिंकारा कहते हैं, एंटीलॉप्स, मृग, वाइल्ड बोर्स या जंगली सुअर, भारतीय लंगूर और मोर। तो 22 का सही, ये सारे जो हैं हर्बीवोरस एनिमल्स हैं और इनका जो है गणना हम लोग जो है हम लोग करते हैं समर्स में। तो 22 का है सही ऑप्शन डी। 22 का है सही ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 23, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द मेन प्रे ऑफ एशियाटिक लायंस? निम्नलिखित में से कौन एशियाई शेरों का मुख्य शिकार है? पहला है वाइल्ड उंगुलेट्स, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गौर। ये है आपका गौर, ये है गौर, है ना, ये गौर है। तो एशियाटिक लायन का सबसे बड़ा जो शिकार होता है यही वाइल्ड उंगुलेट्स होता है या गौर होता है। और दूसरा होता है लंगूर, दूसरा होता है लंगूर। तो 23 का सही ऑप्शन है ए और बी। 24, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ एशियाटिक लायन सेंसस?
एशियाई शेर की जनगणना की समय अवधि क्या है? तो वंस अ ईयर, साल में एक बार। तो 24 का सही ऑप्शन है ए। 24 का सही ऑप्शन है ए। 25, हु यूजेज प्लान बी? प्लान बी यानी मधुमक्खी, बी मतलब मधुमक्खी का उपयोग कौन करता है? वो करता है रेलवे। अब देखिए, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन के पास बहुत सारे हाथी होते हैं, और यदि रेलवे लाइन पे आ जाए तो कितना घातक होता है, कितना ये हार्मफुल होता है, कितना एक्सीडेंट प्रोन होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो इंडियन रेलवे क्या की कि हाथी जो है मधुमक्खी से बहुत डरती है। तो जब ट्रेन आने वाली होती है तो इंडियन रेलवे जो है स्पीकर ऑन कर देती है, और स्पीकर में से आवाज़ निकलता है मधुमक्खियों का, कि मधुमक्खियों का आने जाने छेड़ने का मधुमक्खी का आवाज़ निकलता है, बीज का आवाज़ निकलता है। और जब भी बी का आवाज़ निकलता है तो हाथी जो है उस आवाज़ सुन के भाग जाते हैं, और ट्रेन ट्रैक जो है, रेलवे ट्रैक है, एकदम खाली हो जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 25 उसी पे है, हु यूजेस प्लान बी? तो रेलवे यूजेस प्लान बी। 25 का सही ऑप्शन है ए। 25 का सही ऑप्शन है ए। चलिए कुछ पॉलिटी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, नंबर ऑफ एमपीज इन द 17th लोकसभा। 17वीं लोकसभा में सांसदों की संख्या, वो है आपका ए ऑप्शन 543, 543, 2 है वेकेंट। क्वेश्चन नंबर 1 का सही ऑप्शन है ए। नंबर ऑफ मेल एमपीज इन द 17th लोकसभा। 17वीं लोकसभा में पुरुष सांसदों की संख्या, ये देखिए, पुरुष सांसदों की संख्या है 461 और प्रतिशत है 85.37। तो क्वेश्चन नंबर 2, नंबर ऑफ मेल एमपीज इन द 17th लोकसभा, तो हो जाएगा 461, 461। तो 2 का सही ऑप्शन है ए। और यदि प्रतिशत पूछा जाए तो 85.37%। नंबर ऑफ वुमेन एमपीज इन द 17th लोकसभा। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या, तो फीमेल देखिए 79, और परसेंटेज पूछा जाए तो 14.63। तो नंबर ऑफ वुमेन एमपीज इन द 17th लोकसभा 79 या 14.63%। 17वीं लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या 79। क्वेश्चन नंबर 3 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग देखते हैं, हु इज द ओल्डेस्ट एमपी इन द 17th लोकसभा। 17वीं लोकसभा में सबसे वृद्ध सांसद कौन है? तो 17वीं लोकसभा में सबसे वृद्ध सांसद हैं शफीकुर रहमान बर्क। ये समाजवादी पार्टी के हैं, शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी से, जो कि संभल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हैं, और इनका उम्र है 89 ईयर्स। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हु इज द ओल्डेस्ट एमपी इन द 17th लोकसभा। तो शफीकुर रहमान बर्क। 17वीं लोकसभा में सबसे वृद्ध सांसद कौन है? शफीकुर रहमान बर्क, और इनकी उम्र है 89 ईयर्स। सांबल कॉन्स्टिट्यूएंसी यूपी से आते हैं। 4 का सही ऑप्शन है ए। अब हम लोग बात करते हैं, हु इज द यंगेस्ट एमपी इन द 17th लोकसभा। तो 17th लोकसभा में सबसे यंगेस्ट हैं चंद्रानी मुर्मू ऑफ बीजेडी, बीजू जनता दल। कहाँ के हैं? क्योंझर कॉन्स्टिट्यूएंसी, ये उड़ीसा के हैं, और इनका उम्र है 25 साल, या कह लीजिए अब 26 साल। तो हु इज द यंगेस्ट एमपी इन द 17th लोकसभा? चंद्रानी मुर्मू, चंद्रानी मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 5 का सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 6, व्हेन वाज द लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड। पहली बार लोकसभा लोगों का सदन कब गठित किया गया था? तो पहली बार 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। 17 अप्रैल 1952 को सर्वप्रथम लोकसभा का गठन हुआ था। तो व्हेन वाज द लोकसभा द हाउस ऑफ द पीपल फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड? इट वाज फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन 17 अप्रैल 1952। 17 अप्रैल 1952। 6 का सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द लोकसभा हेल्ड। लोकसभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो पहला सत्र आयोजित किया गया था 13 मई 1952, 13 मई 1952।
पहला सत्र आयोजित किया गया था 13 मई 1952। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन है डी। क्वेश्चन नंबर 8, हु वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो श्री जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे 15 मई 1952 से लेकर 27 फरवरी 1956 तक। तो जीवी मावलंकर वॉज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा। क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन है ए। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। 8 का सही ऑप्शन ए। 9 चलते हैं। हु वॉज द फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा? लोकसभा के पहले उपसभापति कौन थे? तो श्री एम अनंत सैनन अयंगर, है ना। तो एम अनंत शयनम अयंगर, ए अयंगर, ये लोकसभा के पहले प्रथम उपाध्यक्ष थे। ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर, फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो फर्स्ट डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा वॉज ए अयंगर। क्वेश्चन नंबर 9 का सही ऑप्शन है बी। व्हाट इज द कोरम टू कॉन्स्टिट्यूट अ सीटिंग ऑफ द लोकसभा? लोकसभा की बैठक के लिए गणपूर्ति या कोरम क्या है? तो 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही ऑप्शन है ए। व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा एज प्रिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान में निर्धारित लोकसभा की संख्या कितनी है? तो वो है आपका 552 था। 2 एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया है। याद रखिएगा फिर से, पहले था 552, अब 2 लोग एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया है, तो अब हो गया है 550, यानी डी ऑप्शन। 11 का सही ऑप्शन है ई, सॉरी माफ कीजिएगा, 11 का सही ऑप्शन है ई। इनमें से कोई नहीं। पहले था 552, लेकिन अब जो है एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया है, तो 11 का है सी। ठीक है। व्हाट इज द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द स्पीकर? लोकसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल की अवधि क्या है? 5 साल, 5 years। 12 का है ए। अध्यक्ष अपने निर्वाचन की तिथि से जिस संसद में वो निर्वाचित हुआ था उसके विघटन के पश्चात अगली लोकसभा की प्रथम बैठक तक वो पद धारण करता है। हु इज द प्रेसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोकसभा? लोकसभा के पीठासीन अधिकारी कौन होते हैं? तो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, यानी सही ऑप्शन है सी, है ना। 13 का सही ऑप्शन है सी। Who presides of the Lok Sabha when the speaker is absent from the sitting of the house? जब सदन की सभा से अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करते हैं डेप्यूटी स्पीकर, वो करते हैं आपके डेप्यूटी स्पीकर। 14 का है सही ऑप्शन ए। 14 का है सही ऑप्शन ए। 16, who presides over the Lok Sabha when both the speaker and the deputy speaker office fall vacant? तो उसको कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग स्पीकर प्रोटम। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्ष प्रोटम स्पीकर कहते हैं। 16 का है ए। 17, हु इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन इन द 17th लोकसभा? लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन हैं? 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कोई नहीं है, क्योंकि विपक्ष के नेता होने के लिए उस पार्टी को कम से कम 10% लोकसभा के कुल सदस्य संख्या में से 10% सीट होना चाहिए। और जो सिंगल लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी है 17वीं लोकसभा में वो है कांग्रेस की, जिसके पास 52 सीट्स ही है। चाहिए 55 सीट्स। 550 का 10% होता है 55, और कांग्रेस के पास है सिर्फ 52। इसलिए लोकसभा में कोई भी विपक्ष के नेता नहीं है। 17वीं लोकसभा में विपक्ष के नेता कोई भी नहीं है। तो 17 का सही ऑप्शन है ई।
हु आर द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ द 17th लोकसभा, 17वीं लोकसभा में मनोनीत सदस्य कौन है? कोई भी नहीं। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को हटा दिया गया, उनका नॉमिनेशन को खत्म कर दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही ऑप्शन है ई, नन ऑफ दीज। ई, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। 18 का है ई। हु इज द लॉन्गेस्ट सर्विंग मेंबर इन द 16th लोकसभा, 16वीं लोकसभा में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले सदस्य कौन हैं? तो 16वीं लोकसभा में आपके रामविलास पासवान। 19 का है ए। क्वेश्चन नंबर 20, द मेंबर ऑफ द लोकसभा हु बिकेम द स्पीकर ऑफ द हाउस इन द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ, लोकसभा के वो सदस्य जो सदन के अध्यक्ष अपने पहले कार्यकाल में ही बन चुके, मतलब कि लोकसभा के सदस्य चुने गए और पहली कार्यकाल में ये जो है सदन के अध्यक्ष बन गए, लोकसभा के स्पीकर बने। कौन कौन थे भैया? तो देखते हैं। एक थे गणेश वासुदेव मावलंकर, प्रथम लोकसभा में थे, है ना ये। फिर एक CM अनंत सैनम अयंगार, जो पहले डिप्टी स्पीकर थे, लेकिन 1956 से लेकर 1957 में जो है क्योंकि GV मावलंकर का देहांत हो गया था। शुरू में देखिए, पहला लोकसभा के पहले स्पीकर थे GV मावलंकर, इनका डेथ हो गया था। तो डेथ होने के बाद फिर MA अयंगर बने। तो ये दोनों अपने पहले बार ये लोग जीत के आए और पहले बार में ही लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। फिर आपके नीलम संजीवा रेड्डी, ये भी लोकसभा के अध्यक्ष थे। चौथी लोकसभा में ये लोकसभा के अध्यक्ष थे और पहली बार ये संसद बन के आए थे। फिर आपके डॉक्टर गुरुदयाल सिंह ढिल्लन, ये भी आपके पहली बार चुन के आए और पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष बन गए। फिर आपका डॉक्टर श्री हेगड़े, ये छठी लोकसभा में पहली बार चुन के आए और पहली बार अध्यक्ष बन गए। फिर डॉक्टर बलराम जाखड़, ये 7वीं लोकसभा में पहली बार चुन के आए और पहली बार स्पीकर बन गए। ठीक है। मनोहर जोशी, ये लोग जो थे, ये लोग पहली बार लोकसभा में चुन के आए, लोकसभा के संसद बने और पहली बार अध्यक्ष बन गए। तो द मेंबर ऑफ द लोकसभा हु बिकेम द स्पीकर ऑफ द हाउस इन द फर्स्ट टर्म इटसेल्फ आर श्री गणेश वासुदेव मावलंकर सही है, श्री M अनंत सैयनम अयंगर भी सही है, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी भी सही है, डॉक्टर गुरदयाल सिंह ढिल्लन भी सही है। लोकसभा के सदस्य जो सदन के अध्यक्ष अपने पहले कार्यकाल में ही बन चुके वे हैं श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, श्री अयंगर, डॉक्टर नीलम संजीवा रेड्डी, डॉक्टर गुरदील सिंह ढिल्लो, बहुत सारा ये नाम है। A20 का ABCD सभी ऑप्शन आपका सही है। फिलहाल अपने नोट्स में आप श्री सदानंद हेगड़े का भी नाम लिख लीजिए, डॉक्टर बलराम झाकड़ का भी नाम लिख लीजिए, मनोहर जोशी का भी नाम लिख लीजिए। ये सब आपके पहले बार में ही ये लोकसभा के स्पीकर बन गए। Which of the following committee was appointed by the government of India to identify the creamy layer among the backward classes in India? निम्नलिखित में से कौन सा पिछड़ा वर्ग में क्रीमी लेयर की पहचान के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया समिति था? माने कौन सा कमिटी क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करने के लिए, बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर को पहचानने के लिए कौन सी समिति बनी थी? तो समिति का नाम है जस्टिस रामनंदन कमिटी, न्यायमूर्ति रामनंदन समिति। तो 21 का सही ऑप्शन है सी। 21 का सही ऑप्शन है सी। विच कांग्रेस प्रेसिडेंट ड्यूरिंग ब्रिटिश राज इनिशिएटेड द आइडिया ऑफ अ प्लानिंग कमीशन? ब्रिटिश राज के दौरान किस कांग्रेस अध्यक्ष ने योजना आयोग के विचार की शुरुआत की? तो वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। 22 का सही ऑप्शन है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट इंडियन गवर्नमेंट? देखिए भाई, राज्यसभा रिप्रेजेंट द लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट्स। आई डोंट थिंक, है ना, तो ये भी लोकल इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट नहीं, लेकिन हाँ राज्य के प्रतिनिधि यहाँ पे आते हैं।
तो ये सही नहीं है। अ मेंबर ऑफ राज्यसभा मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ स्टेट फ्रॉम विच इलेक्टेड, ये भी सही नहीं है। नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड टू अ स्टेट हैज़ टू बी प्रोपोर्शनल टू इट पॉपुलेशन, ये सही है। एंड द टर्म ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा इज सेम एज दैट ऑफ सीनेटर ऑफ यूएस, तो ये आपका सही है। तो 23 का सही ऑप्शन है 3 और 4, और इसमें जो है कहीं नहीं है, तो इस 23 का सही ऑप्शन है ई। 23 का सही ऑप्शन है ई। 23 का सही ऑप्शन है ई। कोई हिंदी में देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत सरकार के बारे में सही है? राज्यसभा राज्यों के स्थानीय हितों की प्रतिनिधित्व करता है, ये गलत बात है। राज्यसभा का एक सदस्य राज्य का निवासी होना चाहिए जिससे वो निर्वाचित हो, गलत है, ये भी गलत है। किसी राज्य की आवंटित सीटों की संख्या अपने आबादी के अनुपात में होनी चाहिए, ये सही है। राज्यसभा के सदस्य की अवधि अमेरिका में सीनेटर की तरह है, ये सही है। तो 3 और 4 आपका ये सही है। 3 और 4 आपका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24। हु प्रिफर्स टू कैरेक्टराइज द इंडियन फेडरलिज्म एज बार्गेनिंग फेडरलिज्म? भारतीय संघवाद को सौदा करने वाले संघवाद के रूप में चिन्हित करने वाला कौन था? तो वो थे आपके मॉरिस जोन्स, वो थे आपके मॉरिस जोन्स। तो क्वेश्चन नंबर 24 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 25। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डुअल सिटीजनशिप? नेशनल सिटीजनशिप एंड स्टेट सिटीजनशिप। निम्नलिखित में से किस देशों में दोहरी नागरिकता है, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो वो है आपका यूएसए, नहीं, वो है आपका स्विट्जरलैंड एंड यूएसए। स्विट्जरलैंड और यूएसए में 2 नागरिकता हैं, एक तो राष्ट्र की नागरिकता नेशनल सिटीजनशिप और स्टेट सिटीजनशिप। निम्नलिखित में से किस देशों में दोहरी नागरिकता है, राष्ट्रीय नागरिकता और राज्य नागरिकता? तो वो है आपका स्विट्जरलैंड और यूएसए, स्विट्जरलैंड और यूएसए। 25 का सही ऑप्शन है सी। 25 का सही ऑप्शन है